students, welcome to biology class of StudyGist. Today we will continue with the chapter how do the organisms reproduce. So in today's class the topics which I will discuss with you, these are how the embryo, after the formation of zygote, how the embryo gets developed, what are the basic differences between the zygote, the embryo and then the fetus, about menstruation or menstrual cycle, which is the sexual cycle in females. About each and every details we will study. And lastly, about what is menarche and what is menopause, what is the basic age, when and how it happens. All the details will be covered today. Alright. But before we proceed, I want to remind you our social media platforms. Like as you can see on the screen that StudyGist Academy is our YouTube channel. Do subscribe our channel. Like our Facebook page. Do join our Telegram channel. The link is given here. And the name of the channel also you can see, StudyGist School 7 to 10. And when you will download this, it will look like this. You will join this channel, it will look like this. Alright. And you just follow us on Instagram. You can also join us through WhatsApp community. The number is displayed over the screen. And for more updates, do visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our app of StudyGist is freely available. It looks like this. And it's a very user-friendly app. In this app, through this app basically, all the live classes are being conducted. And apart from the live classes, about all the subjects, you will be getting each and every recorded videos and important notes, discussions, everything you will be getting here. So do join today only. Join this, download this app and install it now. This is how our YouTube channel looks like. As I earlier told you, do subscribe our channel, and after subscribing, don't forget to hit the bell icon so that you can get the instant notifications whenever any new videos will be uploaded in our channel. Now this is our Facebook. This is how it looks like. So like us on Facebook too for being united with us continuously. So let's get started. So as I told you, the first topic today is development of embryo. Now what is embryo? See, so far we have studied about male and female reproductive structures. What are the basic reproductive organs? How the sperms and ovum are produced. After that, what happens? After that, sperm and ovum gets fertilized, and how the fertilization occurs, how the sperm move towards the ovum or egg inside the female body, and then after fertilization, the basic product, what we obtain is the zygote, diploid zygote. But the diploid zygote is only first step towards the formation of a newborn baby. But how it happens? It goes through some developmental stages, and on that path, what comes? It comes embryo. Okay? मतलब ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो जाइगोट बनाने के बाद क्या करता है, वो और डेवलप करता है. एंड हाउ इट डेवलप्स, ऑन दैट पाथ ओनली एम्ब्रायो एक पार्ट है जहां पर जाइगोट से वो मिलता है. कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कहाँ से होता है, कहाँ पर ये अटैच होता है, रिगार्डिंग दैट हाउ इट बेसिकली डेवलप्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ऑलराइट. सो व्हाट हैपेंस, ये जो ओवम है और एग है, दैट इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट. ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, okay. Now in the oviduct fertilization takes place. How it takes place? Basically the sperm comes here, right? Comes in the fallopian tube. Same, we can call it as oviduct also and fallopian tube also, whatever. So इस fallopian tube में या oviduct में ovum और sperm ये fertilize करते हैं, and after that fertilization, after the fusion, what is the product जो हम लोग ने पहले ही पढ़ा है, that is the zygote, and that is 2n, denoted by 2n. ये diploid है नेचर में. ओके. ना अभी ये जो zygote है ये rapidly divide करता है by the process of mitosis.
Now you can ask me, or this question may arise in your mind that what is mitosis. In this level मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ आप लोगों को कि माइटोसिस जो है वो एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, एक सेल डिवीजन का टाइप है जहां पर एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनता है। ठीक है, तो माइटोसिस प्रोसेस से ये जाइगोट जो है वो रैपिडली डिवाइड करता है। तो देखो ये दिस इज ओनली 1 राउंड ऑफ माइटोसिस, एक राउंड ऑफ माइटोसिस से ये 1 से 2 बनता है, फ्रॉम 1 to 2। तो अब 2 बार होगा तो कितना होगा, 2 to 4। एंड आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ माइटोसिस सेल डिविजन इट विल फॉर्म 8 सेल्स। इन दिस वे ग्रेजुअली डिवाइड्स, मतलब डिवाइड जो है वो यहाँ से इस तरह से शुरू होती है। ठीक है, नाउ what happens, this continues to divide and divide as it moves down slowly in the oviduct and it forms a hollow ball of hundreds of cells। ऐसे divide करते करते, माइटोसिस से divide करते करते lastly it forms hundreds of cell, 100 cell बना लेता है। okay, and this hollow ball of the cells now it's called embryo। जब 100 बना लेता है, zygote divide करते करते 100 cells जब बना लेता है, then it becomes embryo and it sinks into the soft and the thick lining on the uterus। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में यूटेरस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ओविडक्ट्स में जाइगोट बनता है, मतलब फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है। उसके बाद वो धीरे धीरे डिवाइड करते करते उस ओविडक्ट से आके कहाँ पर आता है, यूटेरस में आता है। यूटेरस जो वॉल होता है, यूटेराइन इनर यूटेराइन वॉल, जिसको एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, उस वॉल में, मतलब ये दिस इज द इनर वॉल ऑफ यूटेरस, इनर वॉल ऑफ यूटेरस एंड दिस इज द एम्ब्रायो। ओके, तो ये यहाँ से सिंक हो जाता है और ये थिक जो वॉल है, थिक जो सॉफ्ट स्पॉन्जी वॉल है यूटेरस का, वहां पर ये एम्बेडेड हो जाता है। ठीक है, मतलब रह जाता है, टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर ये जो इवेंट है, दिस एम्बेडिंग इवेंट ऑफ द एम्ब्रायो इन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, नेक्स्ट what happens, ये implantation के बाद क्या होता है, a disc like spherical tissue develops between the uterus wall and the embryo। मतलब यूटेराइन जो वॉल है, ये देख रहे हो आप लोग, यूटेराइन जो वॉल इस यूटेराइन वॉल और जो फीटस है, मतलब दिस वन, इसके बीच में एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू फॉर्म होता है, स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है, जिसका नाम है प्लासेंटा। पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो, Here placenta is there, okay? And जो फीटस है, ये आप लोग देख रहे हो कि इनर वॉल से और प्लेसेंटा से फीटस जो है वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो कनेक्शन है बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा, ओके, दैट इज व्हाट मीन्स द मदर्स बॉडी, प्लेसेंटा ऑफ द मदर्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। Now ये किस लिए important है, because it is through the placenta that all the requirements of the developing fetus, like the nutrition, like respiration, nutrition, different nutrients must be provided. Respiration means oxygen and carbon dioxide, that इसका जो लेन देन है ये बहुत important है, ये होता है। And the excretion, the waste materials must be removed out from the fetus body। So ये जो होता है, इसका जो कनेक्शन है, ये होता है ये प्लेसेंटा के थ्रू। तो दैट्स व्हाई प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड द वेस्ट मटेरियल्स बिटवीन द एम्ब्रायो एंड द मदर इट टेक्स प्लेस थ्रू द पार्ट नोन एज प्लेसेंटा। अब देखते हैं कि जो टोटल ये फर्टिलाइजेशन के बाद से जो टोटल टाइम पीरियड है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, मतलब द जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट फर्टिलाइजेशन टाइमिंग, मतलब हम लोग ये इंडिकेट करता है द टाइम पीरियड व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म्ड और द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये जाइगोट फॉर्मेशन का जो टाइम है, यहाँ से लेके टिल द बर्थ ऑफ द न्यू बॉर्न, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन। ये टोटल जब बनता है
दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन एंड इट टेक्स एवरेज जेस्टेशन पीरियड फिर कितना होगा जो हम लोग जानते हैं टोटल द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज द 9 months और रफली 38 वीक्स 38 वीक्स तक और 9 months तक जो जाइगोट है जाइगोट धीरे 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 एम्ब्रायो बनाता है फिर धीरे धीरे वो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है राइट ड्यूरिंग दैट पीरियड ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड दैट ड्यूरिंग दैट 9 months और 38 वीक्स ऑफ टाइम द फीटस ग्रोज इनटू अ न्यूबॉर्न बेबी ये जो टाइम है इसमें वो सारा जो उसका पार्ट्स है वो सारा पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप करता है जाइगोट तो बस एक सेल था डिप्लॉयड सेल इनिशियल सेल फ्रॉम वेयर द होल फीटस विल डेवलप होल न्यूबॉर्न बॉडी विल डेवलप फिर यहाँ से डेवलप करते करते वो अल्टीमेटली जो है वो न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देती है राइट एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन एंड इट्स फॉर हाउ लॉन्ग इट्स फॉर 9 months and or roughly 38 weeks. Next, now we'll check out कि zygote, embryo और fetus ये जो है ये सारे developmental stages हैं तो इनमें से differences क्या है देखो zygote जो है वो fertilization के बाद में बनता है देखो it looks like this and इसके बाद वो develop करता है जैसे कि कौन सा process से मैंने अभी कहा it develops और it undergoes division by mitosis okay? उसके बाद वो बनाता है एम्ब्रायो एंड फाइनली ये एम्ब्रायो बन गया जब फाइनली इट फॉर्म्स द फीटस ओके सो अगर हम लोग पॉइंट वाइज देखें तो व्हाट विल बी द डिफरेंसेस जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है यस इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इट्स द फर्स्ट स्टेज डेफिनेटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट्स द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल and no parts are formed it's only single cell तो कोई इसका part जो differentiation या division it has not undergone any division or differentiation तो इसका और कोई part नहीं है and it's कहाँ कब दिखता है just after fertilization soon after fertilization it is observed right now what's embryo see here after zygote there is a formation of embryo it is multicellular देखो यहाँ पर जो है ये बहुत सारा सेल से बना है क्योंकि ये ऑलरेडी माइटोसिस कर चुका है और बहुत राउंड माइटोसिस के बाद ये ऑलमोस्ट इट्स एम्ब्रायो इज हैविंग हंड्रेड्स ऑफ सेल्स राइट तो ये हो गया आपका मल्टी सेलुलर एंड इट्स द सेकेंड स्टेज बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन एंड यहाँ पर जो है इस स्टेज में दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज यहाँ से बॉडी पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू होता है इट्स अबाउट टू फॉर्म the body parts of the newborn is about to form during the stage of when it is an embryo okay और ये कब दिखता है मतलब ये जो डिवीजन होता है हंड्रेड्स ऑफ सेल का जो डिवीजन होता है फ्रॉम वन जाइगोट इट टेक्स 2 to 3 months so ये 2-3 महीने के बाद ये एम्ब्रायो स्टेज आता है आफ्टर द एम्ब्रायो स्टेज इज ओवर देन व्हाट कम्स इट अगेन डिवाइड्स नेक्स्ट कम्स फीटस सो फीटस क्या है फीटस बेसिकली इज द बेबी जो मदर वूम में प्रेजेंट रहता है एंड इट्स द लास्ट स्टेज बिफोर द बर्थ मतलब जेस्टेशन पीरियड का भी एक लास्ट स्टेज है यहाँ पर सारे जो बॉडी पार्ट्स है सब क्लियरली विजिबल हो जाता है सब अच्छे से वेल डेवलप्ड हो जाता है एंड इट्स सीन बिफोर द प्रेगनेंसी के ठीक पहले उस टाइम में ये मतलब जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं अल्ट्रासाउंड में यही दिखता है फीटस ओके एंड the zygote is the fertilized egg which develops into embryo and embryo ultimately develops into fetus. So in one word, zygote is the first cell, then it divides, it forms embryo and ultimately the embryo develops into newborn baby or means the basic fetus. Okay? Next. अब देखते हैं कि menstruation या menstrual cycle जो है वो क्या है ठीक है देखो गर्ल जब बॉर्न होता है कोई भी गर्ल और फीमेल वी कैन से उसकी जो ओवरीज होते हैं दो साइड में दो ओवरीज रहते हैं राइट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि दो साइड में दो ओवरीज रहता है वहां से दो ओविडक्ट्स निकल के आता है राइट तो ये जो ओवरीज हैं दे आर ऑलरेडी कंटेनिंग मेनी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा और एग्स जब ये इनिशियल कंडीशन में रहता है ये ओवरी बहुत सारा ओव्यूल्स और बहुत सारा ओवम और एग जो है वो इमेच्योर कंडीशन में ये ऑलरेडी कैरी करता है ठीक है एंड दीज आर कंटेन्ड इन
इमेच्योर फॉलिकल्स में ये रहता है। इसके बाद क्या होता है, जब दैट गर्ल रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी में जब वो पहुंच जाता है, देन वन फॉलिकल डेवलप्स एट अ टाइम टू फॉर्म अ मेच्योर ओवम। प्यूबर्टी एज जो होता है गर्ल्स के लिए मीन्स 10 to 12 ईयर्स, एट दैट टाइम एक फॉलिकल डेवलप करता है, एक टाइम पे एक ही फॉलिकल डेवलप करता है एंड इट फॉर्म्स अ मेच्योर ओवम और एग, वन एट ए टाइम। ओके, बहुत सारा ओवम एक साथ नहीं आता है, वन एट ए टाइम ओनली। एंड ऑन मेच्योरिंग द फॉलिकल्स बर्स्ट, फॉलिकल जो है वो बर्स्ट कर जाता है एंड ओवम जो है वो ओवरी से बाहर निकल के आता है। दिस इज कॉल्ड, दैट मीन्स द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम that ovary is called ovulation. So release of ovum or egg from the ovary is called ovulation. एक नॉर्मली एक हेल्दी गर्ल और हेल्दी वुमेन की अगर बात करें तो ओव्यूलेशन जो है वो टोटल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फ्रॉम day 1 to day 28 दिस इज द टाइम पीरियड। सो ये मेंस्ट्रुअल साइक्लिक जो पीरियड है इसका ठीक बीच में अगर हम देखें मीन्स 1 to 28, व्हाट कम्स एट द मिडल कम्स 14। तो ये जो 14 डे है यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। सो 14 डे इज द, वी कैन मार्क इज अ ओव्यूलेशन टाइम। ठीक है, ये ओव्यूलेशन होता है 28 डेज के ठीक बीच में, 14 में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज आई टोल्ड यू, फीमेल में ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग ओवम और एग वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ द प्यूबर्टी में जब गर्ल्स पहुंच जाती है तब वंस एट 28 डेज में, हर एक 28 डेज में एक बार एक ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी। मीन्स ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस once for every 28 days during the time of puberty or at the age of puberty, means 10 to 12 years से लेके it starts to continue, and in girls it starts when they attain the puberty. Ovulation doesn't takes place every day after puberty. ऐसा नहीं कि हर एक दिन होता है, जो टाइम पीरियड है that is very much fixed. Menstruation occurs if the ovum released by the ovary of a woman doesn't get fertilized due to non-availability of the sperm during the time of ovulation. मतलब हर एक जो ओवम है जो रिलीज होता है ओवरी से वो फर्टिलाइज नहीं होता है। ओके, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो obviously that woman won't be pregnant. So now it comes like जो menstruation के टाइम में जो ओवम रिलीज होता है 28 डेज में एक बार जो रिलीज होता है ओवम, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक टाइम वो फर्टिलाइज होगा, बिकॉज every time the availability of sperm is not there, and when the sperm is not there, definitely there is no chance for the ovum to be fertilized. So since this process of menstruation in a woman occurs again and again, बार बार होता है after a fixed period of time, that's the 28 days to 30 days roughly, so it's known as the menstrual cycle. Now we'll see कि step by step actually होता क्या है और कैसे होता है। Okay, so first step जो है, when a girl reaches the age of puberty, that means at 10 to 12 years, around 10 to 13 like that. Okay, तब क्या होता है, तब जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स क्या है, सेक्स हॉर्मोन्स यहाँ पर रिमेंबर मैंने आप लोगों को कहा था कि फीमेल में दो हॉर्मोन्स होते हैं, दो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, एक है ईस्ट्रोजन and second one is प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन जो फीमेल्स में जो बॉडीली फिजिकल चेंजेस आते हैं धीरे धीरे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मैंने तभी कहा था कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है दैट कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच ऑकर्स इन फीमेल्स नॉट इन मेल्स। ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये हार्मोन जो है वो दीज आर रिलीज्ड इन आवर ब्लड and cause some of the ova in her ovary to become mature. ये mature होने में help करता है। Usually क्या होता है, one mature ovum is released from the ovary into the oviduct once every 28 days and this is called ovulation. So first step में हम लोगों ने क्या कहा कि एक गर्ल जब maturity तक
मेच्योरिटी मतलब मैं कह रही हूँ अबाउट द प्यूबर्टी एज में जब पहुंच जाता है, दैट मीन्स 10 to 12 ईयर्स की हो जाती है एक लड़की, एक गर्ल, तब उसकी जो सेक्स हॉर्मोन्स है वो रिलीज होना शुरू होती है, एंड द सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन हर ब्लड एंड दे कॉज दिस हेल्प्स टू मैच्योर द ओवरीज, राइट। ओवरीज और ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। ओवरीज मेच्योर हो जाते हैं मतलब दैट ओवरी इज रेडी टू प्रोड्यूस एग। ये सब जो चेंजेस के बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ ऑलरेडी प्यूबर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो इस टाइम में क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम में ओवरीज जो है वो डेवलप कर जाता है। ओवरीज का डेवलप कर जाना मतलब वो दैट ओवरी इज रेडी टू प्रोड्यूस एग्स और ओवम और ओवा, राइट। अब क्या होता है, अब कहा कि एक मेच्योर ओवम रिलीज होता है ओवरी से वंस एट अ टाइम। एवरी 28 डेज में एक ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज होता है, और ये एग रिलीज होने का फ्रॉम द ओवरी जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओके। अब ये ओव्यूलेशन के ठीक पहले द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इट बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। ये मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि ओव्यूलेशन से ठीक पहले यूटेरस का इनर लाइनिंग जो होता है, मतलब इनर वॉल, यूटेरस में ही तो जाइगोट आएगा एम्ब्रायो बन के, और उसके बाद वो इम्प्लांटेशन होगा, देन ओनली इट स्टार्ट्स, राइट। सो इसके लिए उस डेवलपिंग एम्ब्रायो को प्रॉपर सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इनर लाइनिंग जो होता है वो बहुत थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, उसमें बहुत इट बिकम्स फुल ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें, ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाए उसका, राइट, और प्रोटेक्शन मिल सके। एंड इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम और एग। मतलब जब इंडिकेशन, मतलब एवरी 28 डेज में ऐसे जब ओव्यूलेशन होता है तभी ये बनना शुरू हो जाता है, ओके। अब ताकि क्यों हो जाता है, ताकि वो ओव्यूलेशन के बाद जो एग आएगा वो एग आके अच्छे से फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छे से जो जगह है वो फर्टिलाइज्ड ओवम को प्रॉपर सेफली प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत स्पॉन्जी हो जाते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, ओके। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इफ द ओवम डजंट गेट फर्टिलाइज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि हर एक ओवम जो कि ओव्यूलेशन से निकलता है फ्रॉम द ओवरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इट विल बी फर्टिलाइज्ड। प्रॉपर स्पर्म अगर नहीं प्रेजेंट रहा, हेल्दी स्पर्म नहीं रहा, तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, या फिर स्पर्म्स प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल नहीं रहा तो ये नहीं होगा, ओके। सो इफ द ओवम डजंट गेट फर्टिलाइज्ड, then the thick and the soft inner lining of the uterus जो कि बना था पहले, that is no longer needed, no longer required। अब वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, मतलब जाइगोट बना ही नहीं, तो वो एम्ब्रायो भी नहीं बनेगा, तो उसके लिए ये जो लाइनिंग बना था यूटेरस के अंदर that is not needed, that's not required, right, and hence it breaks। इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। अब आप ही बताओ वो किससे बना था, वो बना था सॉफ्ट टिश्यू से, वो बना था ब्लड वेसल से एंड ऑल्सो ब्लड कैपिलरी। सो अब ये अगर नहीं रहेगा तो वो डिग्रेड होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने से क्या रिलीज होगा, जो मटेरियल से इनर लाइनिंग इतना थिक स्पॉन्जी बना है वही ना रिलीज होगा, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज विद द ब्लड इट ब्रेक्स, ओके। सो एज आई टोल्ड यू, द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with the blood vessels and the dead ovum, it comes out of the vagina in the form of bleeding and it is called menstruation। ये bleeding तो होगा ही, क्योंकि soft tissue जो है वो blood vessels and blood capillaries, these are degraded, these are broken down, तो ये blood के form में release होता है, that is called menstruation, okay। and it occurs, menstruation occurs usually 14 days after ovulation। ओव्यूलेशन के 14-15 डेज बाद ये होता है, एंड ये 3 से 5 दिन तक इसका ड्यूरेशन है, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ओके। वंस दिस मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इवेंट इज ओवर, दिस ब्लीडिंग एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, ये इनर लाइनिंग जो है यूटेरस का ये फिर से बिल्ड होना शुरू हो जाता है फॉर द नेक्स्ट फर्टिलाइज्ड एग। इफ द नेक्स्ट एग कम्स इन द फर्टिलाइज्ड कंडीशन, दैट मीन्स द जाइगोट, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए फिर से ये बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अभी अगर ओवम फिर से फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन व्हाट हैपेंस, देन
menstruation again takes place. In this way only, see, every month the girls are having this, girls are dealing with this. So why this is happening, I think this idea is clear now. Okay, now this cycle of menstruation is repeated again and again every month, every 28 days, and it is controlled by which hormone? Basically progesterone. Okay, and this menstruation, it stops temporarily when the ovum gets fertilized and the woman gets pregnant. During the time of pregnancy, that menstruation, this menstrual cycle gets stopped. क्योंकि तब वो fertilization हो गया है. Now this release of the inner lining, this will not happen, the inner wall will not break down, right? This is because in this case a thick and soft inner lining of the uterus, this is containing lots of blood vessels and capillaries into it, is needed for the growth and development of the fertilized ovum or the developing embryo to form a baby. So that's why it gets stopped during that time, and then whenever the birth of the baby happens, again the menstrual cycle begins. Okay. Our last topic of today is menarche and menopause. What is menarche and what is menopause? See, when the menstruation first begins at the age of puberty, that's mean the 10 to 12 years, here it's mentioned 11 to 12 years, same thing, 10 to 12 years, this is the time of puberty in case of females. So the first occurrence of menstruation, when it first time it starts, that time is known as the menarche. That's that first occurrence, of that first time having that menstruation in female, that event is known as menarche. And menstruation stops permanently when a woman reaches the age of about 50 years, around 45 to 50 years में जब एक woman पहुंच जाती है, तब ये menstruation permanently stop हो जाता है. With the permanent stoppage of this menstrual cycle of menstruation, a woman loses her ability to bear children. Okay, तब ये child bear नहीं कर सकती. She becomes infertile at that time. That means she has lost the ability for the fertilization. Fertilize इस age पे fertilization is not possible when the menstruation cycle has stopped. Okay, so the permanent stoppage of menstruation in a woman, that is called menopause. So when woman stops ovulating at menopause, ये हम कह सकते हैं कि 45 to 50 around इस age पे जब पहुंच जाती है, तब क्या होता है, तब woman stops ovulating. Ovulation होना मतलब egg और ovum ovary से produce होना बंद हो जाता है तब. Okay, and definitely she cannot be pregnant anymore, right? So it's the end of the reproductive life of a woman. So we can say that the reproductive life of a woman, it starts at the menopause and menarche and ends at the menopause. Menarche से ये जो reproductive journey है for a woman, it starts और ये menopause के पहले तक चलती है. Then around 45 to 50 age, it varies. For some people, you will see some women 45, 46, and for some women 50, 52. This roughly this is the duration. Okay, तो इस time में ये बंद हो जाता है menstrual cycle, and it detects it says that this is the time when the menopause has come. Picture also is depicting that 11 to 12 years, that is the menarche timing, and total menstruation timing is 12 to 50 years almost. And after 50 years, menopause starts. That's the end of reproductive life. Okay, so this is all about today. See you in the next class. Thank you.